مسیح خداوند کے زندہ جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری طرف سے آپ سب کو ہیپی مدرس ڈے۔ میں خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو یشوا پینٹیکوسٹل چرچ میں ویلکم اور خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا دن ہم سب ماؤں کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور اگر جتنی بھی بیٹیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہے یا ہو چکی ہیں یا جو ابھی ماں نہیں بنی ہے، میں ان سب کو خداوند کے حضور میں ان سب کو ہیپی مدرس ڈے کہتی ہوں۔ اور میرا ایمان ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہو، اس بات کی فکر نہ کریں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کی زندگیوں میں بھی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، ہر سال کی طرح ہم اس سال بھی کچھ ہٹ کر کلام سیکھیں گے۔ ہم نے بہت سے ٹاپکس پر بات کی ہے، بہت سے ٹاپکس پر ہمیشہ سیکھا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ کی زندگیوں میں کام کیا ہے، اور آج کے کلام کے عوض بھی آپ برکت پائیں گے۔ آمین۔ سو بائبل مقدس میں بہت سی طاقتور خواتین کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جن میں راخل ہے، جن میں مریم ہے، جس میں دبورہ ہے، ربکا ہے، آستر ہے، اور بہت سی ایسی خواتین جنہوں نے جو کہ ایک عظیم رہنما رہی، جنہوں نے عظیم خدمات کی، جن کا نام کتاب مقدس میں موجود ہے، صرف اور صرف کیونکہ ان کی خدمات ایسی رہی ہے، اور نہ صرف خدمات رہی ہے، نہ صرف وہ عظیم رہنما رہی ہے، بلکہ ان خواتین کی ایسی کہانیاں ہیں جو کہ بہادری سے بھری ہوئی ہے، جو کہ گر کر سنبھلنے کی اور بے لوثی سے بھری ہوئی ان کی خدمات ہے۔ ہمیں جگہ بہ جگہ یعنی کہ پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے تک ان کی کہانیاں، ان کی بہادری کے قصے ہمیں ملتے ہیں، اور ہمیں آج ہماری بیٹیوں کو، آج ہماری ماں کو، آج ان تمام خواتین کو جو یہاں پر موجود ہے، ہمیں آج ان شخصیات سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ایک بڑی اچھی بات میں نے سیکھی، اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بھی بتاؤں کہ اچھی مائیں، خدا پرست مائیں، خدا سے پیار کرنے والی مائیں اچھی قوم کو جنم دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اچھی بیٹیاں، اچھی بہنیں اور اچھی بیویاں اچھی نسل کو جنم دیتی ہیں، اور انہی نسلوں میں سے ان خواتین کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو کہ بائبل مقدس میں موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہمیں ان شخصیات سے، ان خدمات سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے خدا کے ساتھ چلی، وہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیاں خدا کو دے دی، اور اپنی زندگی کے عوض خدا کے نام کو جلال دیا۔ ہاللیلویا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں اس کلام کو سیکھیں۔ سو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس کلام کو بڑے دھیان سے سنیں، کیونکہ آج کا کلام ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ سو ہم اپنے ورس کی طرف چلیں گے۔ آئے میرے ساتھ نکالے امثال 31 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ میں چاہوں گی کہ کوئی مائک لے اور بلند آواز سے پڑھتا جائے۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ آگے۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر ان جان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ یس، نیکوکار بیوی یعنی کہ نیک بیوی، خدا سے پیار کرنے والی بیوی، خدا پرست بیوی کس کو ملتی ہے؟ جس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ نیک بیوی خدا سے پیار کرنے والی ہوتی ہے، نیک بیوی خدا پرست بیوی ہوتی ہے، اور وہ نہ صرف اپنے شوہر کے لیے، نہ صرف اپنے بچوں کے لیے، نہ صرف اپنے گھرانے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، بلکہ اپنی قوم کے لیے بھی بابرکت ثابت ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ نیک بیوی
ऐसी बीवी है जिसकी कदर बहुत सी कीमती चीजों से ज्यादा है। और यहां मुरजान का मतलब पता क्या है? कीमती पत्थर, पर्ल, प्रेशियस स्टोन, यानी कि जो बहुत ज्यादा कीमती होता है। और आए मेरे साथ एक और हवाला देखें, मत्ती की अंजील 13 बाब और उसकी 45वीं आयत में हमें इस पत्थर के बारे में भेद मिलता है। जरा बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। आयत 45। फिर आसमान की बादशाही उस सुदागर की मानद है जो उनका मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। यस, बस यहां तक। कीमती मोती, आसमान की बादशाही उस कीमती मोती की मानिद है, यानी कि आसमान की बादशाही उस नेक और उम्दा बीवी की मानिद है जो खुदा ने आपको तोहफा दिया है। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह भी इस कीमती तोहफे की बात कर रहा है कि नेकोकार बीवी बादशाही का तोहफा है। हालेलुया। सो वो हस्बैंड जिन्हें नेक बीवियां मिली हैं, जिन्हें अच्छी बीवियां मिली है, जिन्हें खुदा परस्त बीवियां मिली है, वो बहुत ज्यादा लकी हैं। आज हम अपने लिए ऐसी बहुएं ढूंढते हैं, ऐसी बीवियां ढूंढते हैं जेड़ी सोनी होए, गोरी चिट्टी होए, उच्ची लंबी होए, लेकिन हम ये दुआ नहीं करते कि हमारी बहू खुदा परस्त हो, चाहे उसका कलर सांवला क्यों ना हो, चाहे वो दिखने में खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन ऐसी बीवी हो, ऐसी बहू हो, ऐसी बेटी हो जो खुदा से प्यार करने वाली हो। हम ऐसी दुआ क्यों नहीं करते कि साडी बहू रिबका दी तरह होए, साडी बहू राखल दी तरह होए, साडी बहू आस्था दी तरह होए, साडी बहू कपूरा दी तरह होए। हम ये दुआ क्यों नहीं करते? हम ये खुदा से क्यों नहीं मांगते? ते जे सोनी बीवी आ जाती है ते ओ फिर सिरा ते नचदी है, इंज हुंदा है। ओ फिर ना बहंदी है ते ना ही किसे नु बहन देंदी है। ओ फिर ऐसे नाच नचांदी है अपने सोन पुने दे के सारियां नु वक्ता दे देंदी है। सो हमें इस आयत से ये सीखना चाहिए कि हमें ऐसी दुआएं करनी चाहिए। अगर वो भाई जिनकी शादियां होने वाली हैं या फिर जिनके रिश्ते हुए हैं या होने वाले हैं या जिनकी शादियां भी होनी है, मैं उनसे एक ये ताकीद करूंगी कि अपने लिए ये दुआ किया करें कि खुदा आपको अच्छे शोहर और अच्छी बीवियां दे। हालेलुया। सो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरह से हमने नेक बीवी के बारे में आज की वर्ड्स पढ़ी है और हमें ये पता चलता है कि नेक बीवी के अंदर क्या खूबियां होती हैं, नेक बीवी का मतलब क्या है, और बाइबल मुकद्दस में हमें नेक बीवी की क्या स्टोरी मिलती है, और हम आज इससे क्या सीखेंगे कि आज का कलाम के एवज मैं चाहती हूँ और मैं ये दुआ करती हूँ कि आज की बहनें भी बरकत पाए। हालेलुया। सो आए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हम आज आस्तर के बारे में सीखेंगे। खुदा की अजीम सूरमा, खुदा की अजीम खादमा, और उसके अच्छे किरदार की वजह से, उसकी हिम्मत की वजह से, उसकी जुर्रत की वजह से, उसकी अक्लमंदी के एवज और खुदा से लिपटे रहने की एवज उसने ना सिर्फ अपनी कौम को बचाया बल्कि अपनी अक्लमंदी के एवज वो अपने शोहर की नजर में भी पसंदीदा ठहरी। कैसी जबरदस्त शख्सियत है। और ना सिर्फ शोहर की नजर में पसंदीदा ठहरी बल्कि मजबूत ईमान के एवज खुदा की नजर में भी वो मकबूल ठहरी। खुदा की नजर भी उस पर थी और वो हर काम में सबकत पाती रही। और अगर हम उसकी शख्सियत के बारे में देखें, उसके नाम का मतलब देखें, तो आस्तर के नाम का मतलब है
सितारा। और उसके 2 नाम थे, उसका एक नाम इब्रानी भी था जिसका जो नाम था हदसा, और जिसका मतलब है मेहंदी। और हमें स्टोरी कुछ यूं, हमने बहुत दफा इसके बारे में पढ़ा भी है, सीखा भी है। आपने आस्तर की किताब बहुत दफा, उसकी स्टोरी बहुत दफा सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं शॉर्ट चीजें आपको, मेन चीजें आपको उसके किरदार के बारे में बताऊं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि जब एक्सवेरियस बादशाह अपनी मलका को, यानी कि अपनी बीवी को, वश्ती मलका को बुलाता है कि वो हाजिर हो, और सबके सामने वो चाहता था कि उसकी बीवी आए, लेकिन वो आने से इनकार कर देती है। और क्या होता है कि बादशाह का गजब भड़कता है, वो नाराज होता है इस चीज से, और उसे गुस्सा आता है, और वो अपनी मलका को उसके ओहदे से हटा देता है। और उसके बाद होता यूं है कि इन सब बातों के बाद, आए मेरे साथ पढ़े 2 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। आस्तर 2 बाब उसकी पहली वर्स। इन बातों के बाद जब अक्सीरियस बादशाह का गजब ठंडा हुआ, तो उसने वश्ती को जो कुछ उसने किया था और जो कुछ उसके खिलाफ हुक्म हुआ था याद किया। तब बादशाह के मुलाजम जो उसकी खिदमत करते थे कहने लगे कि बादशाह के लिए जवान खूबसूरत कंवारियां ढूंढी जाएं। हाँ जी, बस यहाँ तक। इन सब बातों के बाद जब बादशाह का गुस्सा ठंडा हो गया तो उसे वश्ती मलका की याद आई, लेकिन उसके जितने भी वजीरे खारजा होते हैं या जो भी उसके साथ खिदमत गुजार होते हैं, वो ये फैसला करते हैं कि बादशाह के लिए जवान खूबसूरत लड़कियां ढूंढी जाए, ताकि वश्ती मलका की जगह, उसकी जगह दूसरी मलका आए। तो फिर क्या होता है कि ढूंढने का सिलसिला जारी होता है। और बहुत से मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि हो सकता है वो 500 हो सकता है वो 1000 हो लड़कियां, हो सकता है वो 5000 लड़कियां हो, या कई ज्यादा तादाद हो, जिन लड़कियों में आस्तर की भी एंट्री होती है। आस्तर भी उन सारी कंवारियों के साथ, उन जवान खूबसूरत कंवारियों को ढूंढकर महल में लाया जाता है, और उनके साथ आस्तर भी महल में पहुंचाई जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब आस्तर महल में आ जाती है, तो जो उनको संभालने वाला जो होता है, उनका जो मुहाफिज होता है, वो जैसे ही आस्तर को देखता है, उसे आस्तर पसंद आती है और वो आस्तर पर मेहरबानी करता है। क्योंकि खुदा की नजर उस पर थी, आस्तर पर। खुदा आस्तर से प्यार करता था। किसकी वजह से खुदा उससे प्यार करता था? उसके अच्छे किरदार की वजह से, उसकी अच्छी सीरत की वजह से, उसके अच्छे दिल की वजह से, और इस वजह से क्योंकि वो खुदा का खौफ रखती थी, इसलिए उस पर मेहरबानी, जैसे ही वो महल में जाती है उस पर मेहरबानी होती है। और उसके बाद जब दूसरी कंवारियों के साथ आस्तर भी महल में आ जाती है, तो फिर प्रेपरेशन का टाइम आता है, तैयारी का टाइम आता है। और तैयारी कैसी होती है? 12 महीने की तैयारी, 1 साल की। कैन यू इमेजिन? 12 महीने की तैयारी। असी अज शायद एक दिन की तैयारी करने हैं या कुछ लम्हात दी। दुल्हनों को सजाने के लिए, उनको संवारने के लिए 12 महीने की तैयारी होती थी। ते आज असी कैंजरियां दुल्हनावा बताएं, आज असी 11:30 बजे आने हैं। उन लोगों पर अफसोस जो आज भी चर्च नहीं आए। बहुत सी हमारी फैमिलीज जो नजर ही नहीं आ रही, और मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहती हूं, आप लोगों को जो अपना टाइम निकालकर आज इस खास इबादत में आए हैं, खुदा के कलाम के लिए आए हैं। 12 महीने की प्रेपरेशन
बादशाह के हजूर जाने के लिए, और सिर्फ मकसद क्या है? उस शाही ताज को हासिल करना, मलका का ताज। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਦ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ गए ਨੇ। फिर हमें याद आता है जब चर्च का टाइम होता है कि हमारे तो कपड़े ही प्रेस नहीं हुए, और यहां 12 महीने की प्रेपरेशन हो रही है बादशाह के हजूर जाने के लिए, ते असी ओ बादशाह दे हजूर च आन वास्ते साडे कपड़े प्रेस नहीं होंदे। अफसोस, हमारी प्रेपरेशन कैसी है। और जब हम दुआ करते हैं तो मैं ऐसी जगह पर खड़ी होती हूं कि मेरी नजर सब पर होती है। साडियां नौजवान बेटियां बैठियां हुंदियां ने, चलो बजुर्ग ते समझ च आंदा जिन्हां दे गुट्टियां च या गिटियां च दर्द हुंदी है, लत्तां च दर्द हुंदी है। जब खड़े होकर हम प्रस्तिश करते हैं तो हम आधा घंटा खड़े होकर प्रस्तिश भी नहीं कर सकते, सुस्त टिल्ले। और यहां पर देखें, कंवारियों को सजाया जा रहा है, मुख्तलिफ तरीके से उन्हें तैयार किया जा रहा है खूबसूरत बनाने के लिए। उनके बदन पर मुख्तलिफ ऑयल्स उन्हें तैयार किया जाता था, मुख्तलिफ ऑयल्स के साथ उन्हें सजाया और संवारा जाता था, क्योंकि उस वक्त ब्यूटी पार्लर्स नहीं थे। उस वक्त मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियां होती थी जिससे औरत को खूबसूरत ते होर ज्यादा गोरा चिट्टा किया जाता है, ताकि जैसे ही बादशाह की नजर मलका पर जाए तो वो फिदा हो जाए, उन्हें पसंद है। हर लिहाज से, हर तरह से उनकी प्रेपरेशन होती थी, उनकी चलने की, बोलने की, उनके अंदाज की, हर तरह से उन्हें सिखाया जाता था और उन्हें वो सामान प्रोवाइड किया जाता था जो कि खूबसूरती का होता था। आज पहला दौर च यह हुंदा सी कि दुल्हन नूं बड़े उपटन शुपटन लगाए जाते सन, महीना पहले, सिर्फ महीना पहले, या फिर क्रीमा जिंदाबाद, गोरा करन वालियां क्रीमा। अगर आस्तर इस दौर में होती तो उन्होंने 12 महीने की प्रेपरेशन की फिर जरूरत नहीं सी, और उन औरतों को 12 महीने के लिए तैयार किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ उस ताज को हासिल करने के लिए। और मौजूदा दौर में अगर हम इस बात को देखें तो बहुत से लोगों ने इस चीज को देखा होगा टीवी पर। बचपन में हमें भी इस चीज का शौक होता था, इस चीज को देखने का। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है जिसमें मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस एशिया होती है, आई थिंक, और भी बहुत सी, पता नहीं कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते। तो उसमें लड़कियों को तैयार किया जाता था, उन्हें हर तरह से खूबसूरत बनाया जाता है ताकि सिर्फ और सिर्फ उस ताज को हासिल कर सके। और यहां भी हमें आस्तर के दौर में हम उस सारे पसे मंजर को देखते हैं। बहुत से लोगों को इस चीज को भी इशू होता है कि लो जी इस चर्च से बड़ा तैयार होया जाता है, बड़ा मेकअप किया जाता है, और ए वेख लो कलाम तुहाडे सामने में कि कितना ज्यादा इस चीज को बारीकी से, और ये कितना ज्यादा मुश्किल टास्क होता था, कितना लड़कियों को सजाया और संवारा जाता था। ते होन अगर कोई तुहानू कहे कि तुहाडे चर्च तैयार हुंदे ने ते तुसी बाइबल दे नाल उहनू मिसाल दे सकदे हो कि यह चीज़ां अज तो नहीं ने, पिछले दौर तो चलदियां आ रही ने कि लड़कियां अपने आप को किस तरीके ना
सजांदियां ते सवारदियां सन। और उनकी तैयारी में एक और अमल होता था। वो अमल ये होता था कि कमरे के अंदर खुशबूदार चीजें जलाकर इतना ज्यादा कमरे को खुशबू से भर दिया जाता था और उन कमारियों को उसके अंदर भेजा जाता था ताकि उसके जिस्म में खुशबू वो रच बच जाए, बिल्कुल उनके जिस्म में वो खुशबू रच जाए, ताकि जब बादशाह के आगे वो कवारी पहुंचाई जाए तो बादशाह को ना सिर्फ उसके बदन की खुशबू मुतासिर करे, ना सिर्फ उसकी खूबसूरती मुतासिर करे, बल्कि वो सारी चीजें देखता था। और ऐसा ही होता है कि उन कमारियों के साथ आस्तर भी वहां पहुंचती है और बादशाह आस्तर को पसंद करता है। उन सारी कमारियों में आस्तर सिलेक्ट होती है। उन सारी कमारियों में जैसे ही उसकी नजर आस्तर पर पड़ती है तो वो उसे पसंद करता है। मेरे साथ वर्स देखें ताकि सबको पता चले। और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया यस और वो उसकी नजर में उन सब कुंवारियों से ज्यादा अजीज और पसंदीदा ठहरी। बस उसने शाही ताज उसके सर पर रख दिया और वश्ती की जगह उसे अमर का बनाया। हाँ जी, बादशाह को वो इतनी मुतासिर करी, उसकी पर्सनैलिटी, उसका स्टाइल, उसके बदन की खुशबू, के बादशाह ने वो शाही ताज उसे पहना दिया। और इमसाल 11 बाब और 16 आयत में एक वर्स देखें, बड़ी खूबसूरत वर्स है कि नेक सीरत औरत इज्जत पाती है। नेक सीरत जो बीवी होती है, जो औरत होती है, वो हर एक चीज में इज्जत पाती है। क्यों? क्योंकि खुदा उससे प्यार करता है, खुदा की नजर उस पर होती है और वो हर एक चीज में सबकत पाती है। आस्तर भी जैसे ही महल में जाती है तो वो इज्जत पाती है। उन सारे लोगों में जैसे ही उन लोगों की जो मुहाफिज होते हैं, जो कमारियों का ख्याल रखते हैं, उनकी नजर जैसे ही आस्तर पर पड़ी, आस्तर ने वहां भी इज्जत पाई। और जैसे ही वो बादशाह के सामने गई तो बादशाह की नजर में भी उसकी इज्जत बढ़ी और बादशाह को वो पसंद आई। तो कलाम क्या बयान करता है ऐसी बीवियों के लिए? नेक सीरत औरत इज्जत पाती है, वो हर एक चीज में इज्जत पाती है, वो हर एक काम में इज्जत पाती है, क्योंकि खुदा की नजर उन पर होती है। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं कि कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती है और उसके बाद हम हमान को देखते हैं कि जो कि उसका वजीर है और वो सारे वुज़रा से उसकी जो कुर्सी है वो सबसे ऊपर है और वो ऐसा शख्स था कि जैसे ही वो गुजरता था तो सब लोग उसे सिजदा करते थे। लेकिन एक मर्द की जो उसका चचा का बेटा होता है, जिसने आस्तर को पाला होता है, वो यहूदी होता है और वो उसे सजदा नहीं करता और इस बात की उसे बड़ी तकलीफ होती है कि ये शख्स मुझे सजदा क्यों नहीं करता जबकि हर कोई मुझे सजदा कर रहा है। लेकिन कलाम भी ये बयान करता है कि सजदा सिर्फ और सिर्फ उसकी जात को वाजिब है, क्योंकि वही सजदों के लायक है, इंसान सजदों के लायक नहीं है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब यहूदियों पर मुश्किल वक्त आता है, जब आस्तर की कौम पर मुश्किल वक्त आता है, तो वो क्या करती है? रोजे में ठहर जाती है और आस्तर 3 दिन का रोजा रखती है। आस्तर के रोजे को हम रोजों के अयाम में या कभी रोजों की बात करें तो हम आस्तर के रोजे को जरूर याद करते हैं, क्योंकि
اس نے 3 دن کا روزہ رکھا, اور نہ صرف اس نے روزہ رکھا بلکہ اس کی سہیلیوں نے بھی روزہ رکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی قوم سے پیار کرتی ہے, اس کے دل میں اپنی قوم کے لیے درد ہے, تکلیف ہے, وہ نہایت غمگین ہو جاتی ہے. پلیز بچیاں نو ذرا بٹھاؤ, شور نہیں ہونا چاہیے, کلام کو غور سے سنیں گے تو کلام آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب ملکہ استر کیا رکھتی ہے؟ روزہ رکھتی ہے. آج جب ہماری فیملیز میں مصیبت آتی ہے, ہمارے بچوں پر مصیبت آتی ہے, تو ہم کتنے روزے رکھتے ہیں بتائیں؟ ہم روزہ نہیں رکھتے. آستر کے دل میں اپنی قوم کے لیے درد ہے اور وہ روزے میں جھک گئی ہے. اس نے ٹاٹ توڑ لیا ہے اور ساری قوم افسردہ ہے, رنجیدہ ہے. لیکن آج اگر ساڈے بچے ساڈے ہتھاں چوں نکل جان, بیٹے بیٹیاں, تے سانو کوئی افسوس نہیں ہوندا, ساڈے دل چ کوئی ندامت نہیں ہوندی, ساڈے دل چ کوئی افسردگی نہیں ہوندی. اسی بوجھ ہی نہیں رکھدے کہ اسی اپنے بہن بھراواں واسطے دعا کریے. آج آستر جیسی بیٹی کی ہر ایک گھرانے کو ضرورت ہے. جس طرح سے وہ روزے میں ٹھہر گئی, جس طرح سے اس نے ٹاٹ توڑ لیا, جس طرح سے اس نے اس ساری سچویشن کو ہینڈل کیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر. آج ساڈے گھر دے جننے بھی افراد ہوندے نے, ساڈے بہن بھرا, وہ نہیں ساڈے نال اتفاق کردے تو سہیلیاں تو دور کی بات ہے. آج ہمارے گھر والے نہیں اتفاق کرتے. آج ہم لوگ کہتے ہیں میں تھوڑی پرابلم چ, میں تھوڑی مصیبت چ, جہے جو مصیبت ہے بھی وہ ویکھے. آج بہن بھائیوں میں محبت نہیں ہوتی, ماں باپ میں محبت نہیں ہوتی, اور بے شک سارے ایسے نہیں ہوتے, میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو اپنی قوم کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, یہاں تک کہ اپنی کلیسیا کے لیے درد رکھتی ہیں. آج ہم اپنی کلیسیا کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں. کی تسا کدی چرچ دی ترقی واسطے روزہ رکھے ہے؟ بتائیں, کبھی چرچ کی ترقی کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے؟ کبھی آپ آنسوں کے ساتھ, درد کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ خدا کے حضور میں جھکے ہیں کہ ہمارا چرچ ترقی پائے, ہمارے گھرانے ترقی پائے؟ ان ساری چیزوں کو تو چھوڑیں, کبھی آپ نے اپنی روحانی ترقی کے لیے دعا کی ہے؟ اسی انج دے لوگ آ کہ اسی اپنی روحانی ترقی واسطے بھی دعا نہیں کرتے کہ خدا سانو بداوے, خدا سانو بڑھائے, خدا ہماری نعمتوں کو اور زیادہ بڑھائے, خدا پاک روح اور زیادہ ہماری زندگیوں میں کام کرے. ہم اپنے لیے بھی نہیں دعا کرتے. ہم آج کتنے خود غرض ہیں. اور آستر کو دیکھے, اس نے اپنی قوم کے لیے وہ کھڑی ہو گئی ہے. اور آپ جانتے ہیں اس بات کو, آپ نے سٹوری پڑھی ہوگی کہ بادشاہ کے حضور میں بنا بلائے جانا کتنا زیادہ مشکل تھا, کٹن تھا. چاہے کوئی کتنی بھی بڑی پوسٹ پر ہو, چاہے وہ ملکہ کیوں نہ ہو, اگر کوئی اس کے حضور میں جاتا تھا تو وہ جان سے مارا جاتا تھا. لیکن آستر نے اپنی جان کی فکر نہ کی اور وہ خدا کے حضور میں بیٹھ گئی اور اس نے دعا کی اپنے قوم کے لیے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ خدا نے بادشاہ کے دل کو نرم کر دیا. جب ہم دعا اور روزے میں جھک جاتے ہیں, خدا سچویشنز کو تبدیل کر دیتا ہے. جب ہم دعا اور روزے میں ٹھہر جاتے ہیں تو خدا بادشاہ کے دل کو تبدیل کر دیتا ہے. جب ہم دعا اور روزے میں ٹھہر جاتے ہیں تو ابلیس کا وہ منہ جو آپ کے خلاف کھلا ہوتا ہے, آپ کے بچوں کے خلاف, آپ کے گھرانے کے خلاف,
आपकी जिंदगियों के खिलाफ, खुदा उन सारी सिचुएशंस को तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आपका दुआ और रोजा ये कमाल करता है कि तूफानों के रुख तब्दील हो जाते हैं। हालेलुया। आपका दुआ और रोजा ये ताकत रखता है कि हर तरह के मुश्किल हालात, हर तरह की वबाएं, तकलीफें, परेशानियां जो आपके खिलाफ होते हैं, आपके घरानों के खिलाफ होती है, आपकी कौम के खिलाफ होती है, खुदा उनको बंद करने की कुदरत रखता है। आप जानते हैं कि जिस दिन से हालात थोड़े से खराब है, मैं और मेरी बेटी शैनन, हम सभी बेशक हम उस दिन से दुआ कर रहे हैं, और ना सिर्फ दुआ की बल्कि हमने रोजा रखा कि खुदावन हमारा मुल्क सलामत रहे, जिसमें हम आजादी से दुआ करते हैं, जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, जिसमें हम जब कहीं जहां कहीं दुआ कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और हमारे मुल्क पर कोई आंच ना आए। और खुदा ने क्या किया? खुदा ने वाकई काम किया। और कल जब हमें न्यूज़ पता चली तो हम इतना खुश हुए कि खुदा वाकई में हम सब की दुआओं को सुनने की कुदरत रखता है। हालेलुया। ईमान से की गई दुआ और रोजा आपकी जिंदगियों में बरकत का काम करता है। ना सिर्फ आपकी जिंदगी में मौजज़ा होता है, बल्कि आपकी जिंदगियों में खुदा काम करता है और आप रूहानी तौर से भी और मजबूत होते हैं। आस्तर पर खुदा की नजर थी। वो ना सिर्फ अच्छी बेटी बल्कि अच्छी बीवी थी, और आज अगर उसने ये खिदमत की तो हम उनकी कहानियां, उनके किस्से और उनकी बातें सीखते हैं। क्यों? क्योंकि कलामे मुकद्दस में ऐसी बाहिम्मत शख्सियात का जिक्र हमें मिलता है जिनसे हम सीखते हैं। और आज हमारी बेटियों को इन सारी चीजों से, इन शख्सियात से, इन कलाम से सीखने की जरूरत है। आज साड़ी बच्चियां दे, मैं बड़े अफसोस ना कवांगी, फैशन नहीं खत्म होंगे। तैयार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन असी होना चीज़ा का फायदा चुकने आ। आज अगर सानू थोड़ी सारी खूबसूरती मिल जाए, कोई गोरा चिट्टा रंग मिल जाए, ते साड़ी ते खलोत नहीं। मैं भी तस्वीरें बनाती हूँ, मुझे भी बहुत शौक है, और पास्टर साहब ने मुझे कभी भी मना नहीं किया इन चीजों से, लेकिन असी गलत फायदे चुकने आ। साडियां बच्चियां छोटियां छोटियां टिकटॉक से में, और मैं जब उनकी वीडियोस देखती हूं तो मुझे अफसोस होता है। मैं टिकटॉक पर नहीं हूं, मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वीडियो आ जाती है, और मुझे अफसोस होता है उन बेटियों पर। आस्था ने अपनी खूबसूरती बुरी चीजों के लिए जाया नहीं की, उसकी खूबसूरती भी अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल हुई। उसकी खूबसूरती से भी खुदा के नाम को जलाल मिला, उसकी खूबसूरती से भी खुदा ने उसे सरफराजी दी। और हमारी बेटियां, मुझे अफसोस होता है, मैं आज मदर्स डे पर उन माओं के साथ मुखातिब हूं कि खुदारा अपनी बेटियों को की अच्छी परवरिश करे, अपनी बेटियों को अच्छी चीजें सिखाए, जरूरत से ज्यादा उन्हें ब्रॉड होना ना सिखाए। हम पाकिस्तान में रहते हैं और सारी चीजों को देखते हुए अपनी बच्चियों को ये चीजें सिखाएं। अगर उन्हें नहीं पता तो उन्हें बताएं। असी एडियां एडियां बच्चियां आज मॉडलां बनदियां फिरदियां ने। उसके बाद क्या होता है कि आस्तर के वसीला से, उसकी दुआओं के एवज, जब खुदा उसकी जिंदगी में काम करता है तो उसकी कौम रिहाई पाती है। आज हमारी दुआओं के एवज भी हमारी कौम, हमारे घराने बच जाते हैं। इमसाल 19 बाब और उसकी 14वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी
खुदावन से मिलती है। कैसा खूबसूरत तोहफा है। अक्लमंद बीवी, चाहे वो खूबसूरत इतनी ना हो, लेकिन खुदा का फजल जब उस पर होता है तो वो खुद ही खूबसूरत लगती है। उसके शोहर की वजह से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। लास्ट ईयर मैंने इस चीज को डिस्कस नहीं करना था, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी कि लास्ट ईयर मैंने एक डायलॉग बोला जो बड़ा वायरल हो गया, और मैं इस चीज से खुश हुई कि अगर किसी बहन भाई की जिंदगी में, अगर मियाँ बीवी की जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी तो वो दूर हुई। खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किया और उनकी जिंदगी में जो भी चीजें थी खुदा ने उन चीजों को सही किया। लेकिन अफसोस मुझे कहां पर हुआ कि हमारे चर्च में कुछ बहनें थी, और चर्च के बाद अक्सर कुछ भाई होते हैं हमारे साथ, वो पास्टर साहब के साथ बैठे होते हैं और मेरे साथ कुछ बहनें बैठी होती हैं, और अब वो चर्च में नहीं आते, वो अपनी मर्जी से गए। और मुझे उस बहन ने कहा कि बाजी मैं ते अपने कार दी आप ही डोना, साढ़े बंदे बुंदे कोई नहीं डोन। और मुझे अफसोस हुआ इस बात पर कि किथे लिखा तुसी डोन हो, दसो मैनू कलाम च किते तुसा लिखिया वेख्या? इट वॉज जस्ट अ डायलॉग, मैंने जस्ट एक डायलॉग बोला। और कुछ चीजों की वजह से हमारे चर्च में ऐसे कपल है जिनकी शादियों को 25, 30 साल हो गए, लेकिन वो जब मुझसे प्रॉब्लम्स शेयर करती थी तो मुझे अफसोस होता था कि इतना कलाम सुनने के बावजूद भी उनकी जिंदगियों में काम नहीं है, उनकी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं है। जबकि हमने कितनी बार मियाँ बीवी पर कलाम सुना है, और लास्ट ईयर भी मेरा कलाम यही था। पास्टर साहब ने कितनी दफा कलाम सुनाया है, इवन के हमारे चर्च में मियाँ बीवी पर सेमिनार भी हुआ था। लेकिन मैं उन भाइयों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जिनकी जिंदगियों में अब ये चीजें नहीं है। खुदा ने उनकी जिंदगियों में काम किया, लेकिन वो बहन आप जानते हैं यहां बैठकर वो प्रस्तिश करती थी, और जब खुदा की हजूरी आती थी तो बड़ा हाथ उठा उठा कर वो जी बड़ी वो मसा से भर जाती थी। और ऐसी बहनें जो खुदा के कलाम को ऑलरेडी जानती है, वो ऐसी नकारा और नकमी बातें करे तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। और कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। इमसाल दरअसल उन सारी चीजों से भरा हुआ है, मियाँ बीवी और उन सारी हिकमत की बातों से भरा हुआ है। और वो सारी वर्सेस जो हमें मियाँ बीवी के हवाले से मिलती है, बीवियों के हवाले से मिलती है, और उसके 14वें बाब की पहली वर्स में क्या लिखा हुआ है, मैं भाई समरून से कहूंगी कि वो बुलंद आवाज से पढ़े, ताकि अगर कोई रही गई कसर साडी भैना च है भी है तो वो आज जावे। जनाब औरत अपना घर बनाती है, पर अहमद उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। हाँ जी, दाना औरत अपना घर बनाती है, पर अहमक उसे अपने ही हाथों से उजाड़ देती है। अपनी अहमकाना बातों की वजह से, अपनी अहमकाना सोच की वजह से अक्लमंद औरत अपना घर बनाती है। आस्तर ने अपना घर बनाया, वो अपने घराने के लिए बाबरकत साबित हुई, वो बाबरकत बीवी साबित हुई, वो नदामत का बाइस नहीं बनी। और आज हमारी बहनें, आज हमारी माएं जब ऐसी बातें करती हैं तो हमें कलामे मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी मिलती है। आए मेरे साथ निकाले नोमी की स्टोरी, रूत निकाले। नोमी, उसका शौहर और उसके दोनों बेटे जब यरूशलेम में काल पड़ता है